Hello, friends, and welcome back to yet another new video on emission calling. And it is one of the most important current topics that has been a lot spoken about, talked about, read about since the past 2 days, since the National Education Policy, or the NEP as you call it, has just been released. And this is going to be a video that will take on most of the important points of this historical document. So please watch the video till the end so that you can get a broad idea of all the changes that is going to come in the education sector and in your lives as well. So guys, this is the historic document that has been officially released on the MHRD website recently, the National Education Policy 2020. Before this, last year, a draft regulation was released, and there has been some changes from that draft regulation to this one. This is the draft NEP 2019 that was released last year, and it was open to public opinion. You could mail and tell them your opinion. And then the final NEP was released last year. As you can see, it looked something like this. This is how the contents look, and now we have the final one. So there are some differences, there are some points which have not been included and some extra points has been included. So this is the first thing I wanted to tell you all. Let's look at the history of the NEP, or where is this coming from. So the NEP was first introduced in 1968, and then the second NEP was introduced in 1986, and then we had the program of action. There were few minor changes in 1992 as well, but then we consider that this NEP 2020 is the third NEP our country is getting, that is after 34 long years, and it was headed by Dr. Kasturi Rangan, who is an ISRO scientist. Moving forward, we come to the school education, which is the most discussed, most analyzed point of the whole NEP since the past few days. Most of you all must be knowing by now that the 10 plus 2 structure has been replaced by the 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure. And the most important change here is the omission of the board exams, the pressure of the board exams, the rote memorization, and प्री-स्कूल एजुकेशन दैट इज किंडरगार्टन और आंगनवाड़ी शिक्षा जिसे कहा जा रहा है उसको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इंक्लूड किया गया है, जो कि अब तक नहीं था. And there's been a lot of focus, a lot of stress on vocational education. And of course, the MHRD has been aptly renamed as the Education Ministry. And the Right to Education has been updated. The Right to Education Act 2009 included the free education for children aged 6 to 14 years. यानी कि दोस्तों अब तक 6 से 14 वर्षीय बच्चों की शिक्षा फ्री में दिया जाता था, जो कि राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आता था, पर अब इसको मॉडिफाई करके, रेक्टिफाई करके, अपडेट करके 3 से 18 वर्ष के बच्चों को इसमें लाया जा रहा है. क्योंकि रीज़न बहुत साफ है, क्योंकि यहाँ पे प्री स्कूल को भी इंक्लूड किया जा रहा है. तो अगर प्री स्कूल इंक्लूड किया जाएगा तो उसमें एज भी 3 ईयर्स इसलिए कर दिया गया है. और उसके बाद कोई स्ट्रीम है जो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में हम इनको डिवाइड करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा ही होगा. उन्होंने बताया कि आप अपनी मर्जी से फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी ले सकते हो. इसी पॉइंट पर और ज़्यादा बात करते हुए हम देखते हैं इसका डॉक्यूमेंट, जहाँ पे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझाया गया है. तो सबसे पहले है वी हैव द फाउंडेशनल ईयर्स. The foundational years, that's the first 5 years. Then we have 3 years of preparatory, and then we have 3 years of middle school, and finally we have 4 years of secondary school or secondary education. Secondary education will include classes 9 to 12. यानी अब तक 10th में एक बड़ी परीक्षा होती थी, उसके बाद 12th में. तो उस चीज को पूरा हटाकर 9 to 12 सेमेस्टर सिस्टम रहेगा, और उसमें आप कोई भी सब्जेक्ट अपनी मर्जी का ले सकते हो. कोई ऐसे स्ट्रीम का डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया है. मूविंग ऑन, वी कम टू हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन यानी कि आपकी कॉलेज की पढ़ाई. आप स्कूल खत्म करने के बाद जाते हो कॉलेज में, जहाँ पर अब तक की था 3 साल का ग्रेजुएशन आपका, जिसको मॉडिफाई करके 3 या 4 साल का कर दिया गया है. कुछ लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन सिर्फ इसी वजह से करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट जॉब, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उनमें अप्लाई कर सके, क्योंकि उनमें मिनिमम एलिजिबिलिटी ही ग्रेजुएशन माना जाता है. ये उनके लिए बिल्कुल ही सही डिसीजन है कि वो 3 साल का ग्रेजुएशन करे. और दूसरी तरफ है वो लोग जो हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज में, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए है 4 साल का ग्रेजुएशन. देखने वाली, सोचने वाली बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि ये डिसीजन अब आपको पहले ही लेना होगा कि वेदर आप
बीएड करना चाहते हो या फिर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, ये डिसीजन आपको पहले ही लेना होगा। जैसे कि आप डिसाइड करते हो कि आप मेडिकल करना चाहते हो या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, वैसे आपको डिसाइड करना है कि वेदर आप टीचिंग करना चाहते हो या नहीं। ये कुछ बाद में आप डिसाइड नहीं कर सकते। सो दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप आई थिंक, बिकॉज टिल नाउ the profession of teaching was not given that much importance. One of the other important things that has been added is the multiple entry and multiple exit system, इंक्लूडिंग द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। अब ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है? अगर आप किसी भी कोर्स में, मतलब ग्रेजुएशन के कोर्स में, अगर आप एक साल के बाद कोई भी किसी फाइनेंशियल वजह से या पारिवारिक वजह से अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आपका वो जो स्कोर है, वो जो आपका क्रेडिट है, वो वहाँ पे बैंक में जैसे सेव होता है वैसे वो सेव होगा। आप अगर बाद में उसको आकर फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो तो वहाँ से वो फिर आप सेकेंड ईयर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। फर्स्ट ईयर में आप सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में आप डिप्लोमा, थर्ड ईयर में आप नॉर्मल ग्रेजुएशन और फोर्थ ईयर में आप रिसर्च वाली ग्रेजुएशन के साथ पास आउट हो सकते हो फ्रेंड्स। एंड इफ यू ऑप्ट फॉर द 3 ईयर ग्रेजुएशन, फिर बाद में अगर आपको मास्टर्स करना हो देन यू हैव टू गो फॉर द 2 ईयर वन। और अगर आप रिसर्च वाला 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो देन द मास्टर डिग्री फॉर यू इज ऑफ 1 ईयर ओनली, and then you can directly head on to your PhD as the MPhil degree has been scrapped. Now there has been a lot of UGC rules regarding this कि MPhil करने से उसमें कुछ मार्क्स अलॉट रहते हैं। उस बारे में भी काफ़ी स्पेकुलेशन, काफ़ी चर्चा हो रही है, पर इस बारे में वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बिकॉज द यूजीसी इटसेल्फ माइट आल्सो बी स्क्रैप्ड। सो लेट्स सी। एंड बीएड के बारे में भी मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको, वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बताया था। उसमें मैंने इन तीनों टाइप के बीएड के बारे में बताया था। जो अभी 4 साल का बीएड ही रहेगा, द 4 ईयर बीएड इज गोइंग टू बी द ओनली फॉर्म ऑफ बीएड दैट इज गोइंग टू बी देयर आफ्टर 2030। यानी ये जो फेज है ये कूलिंग पीरियड है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो मास्टर्स कर चुके हैं। अभी भी रोज हम देखते हैं इंटरनेट पे, यहाँ वहाँ लोग पूछते हैं मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, क्या मुझे फिर से 4 साल का बीएड करना पड़ेगा? दिस क्वेश्चन इज स्टिल गोइंग ऑन एंड मेनी पीपल आर स्टिल नॉट क्लियर विद देयर आंसर्स। Friends, if you have done your graduation, you have to go for a 2 year BEd degree, and if you have done your masters, you can go for the 1 year BEd degree. It is written in the notification, but we don't have any such current program running. So let's wait and see what happens. And the National Research Foundation will also be formed. Here you can see some important points about higher education has been mentioned in the NEP document. You can read the document. I will give you the link in the description box, or you can directly head on to the MHRD website and read the document yourself. Coming to the next point of teacher education and teacher recruitment, which is not so much spoken about by the major news channels or so many channels on YouTube. वो सिर्फ स्कूल ही शिक्षा पर ही बात कर रहे हैं, पर बहुत बड़ा बदलाव टीचर एजुकेशन और रिक्रूटमेंट की प्रोसेस में भी आया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेजेस में ये बात डिस्कस की गई है। तो जो मेजर चेंज है वो तो 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन से टाइप्स के बीएड हैं। उसके अलावा टीचर रिक्रूटमेंट बहुत ही ज़्यादा सख्त होने वाली है, क्योंकि उसमें सीटेट और एनटीए के स्कोर्स को कंसिडर किया जाने वाला है, जो कि अब तक ऐसा नहीं था। अब तक आप बस सीटेट क्वालिफाई करते थे तो क्वालिफाइंग criteria was only there, but now they have spoken about the TET scores, so we will have to wait to see how these TET score come into action. Apart from that, CTET was conducted in 2 levels. अब तक CTET के सिर्फ 2 ही लेवल होते हैं फ्रेंड्स, जो कि एक आपको पता ही होगा, पेपर 1 और पेपर 2 PRT और TGT के लिए। पर क्योंकि अभी ये पूरा डिवीजन ही चेंज हो गया है, टीचर्स का एजुकेशन किन के लिए है? बच्चों के लिए। तो जब बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की वो जो लेवल्स चेंज होंगे, उसका प्रभाव टीचर्स पर भी पड़ेगा। तो जैसे कि ये 5+3+3+4 जो मॉडल हैं, ये जो 4 स्टेजेस हैं, ये 4 स्टेजेस के लिए अलग से टेट होने की बात संभावना इस डॉक्यूमेंट में जताई जा रही है। और डेमो और इंटरव्यू को बिल्कुल ही मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि सेंट्रल स्कूल्स में जैसे KVS NVS में वो पहले से ही था, पर बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा नहीं है। जैसे कि अब स्टेट्स अपने ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट करती है, जैसे कि आपका रीट हो गया, MP टेट हो गया, UP टेट हो गया, उड़ीसा का टेट हो गया, वेस्ट बंगाल टेट, ऐसे बहुत सारे टेट्स हैं जो, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो इसमें हमेशा ही था और आगे भी रहेगा कि स्टेट्स को अपने हिसाब से डिसाइड करने का पावर रहता ही है। Here if you see, a lot of importance has been given on teacher education, and all the colleges which do not provide proper education will be barred, and it is a very long term process. बहुत टाइम और समय लगने वाला है इन सब चीज़ों को
रियल में होने के लिए, तो भी ये सिर्फ पेपर पर ही है। पर ये इम्पॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। अगर आप इस प्रोफेशन में हैं या फिर आपके घर में कोई है या फिर एक देश के आप सिटीजन भी हो, तो ये इतना बड़ा बदलाव है कि किसी ना किसी तरह से आपके लाइफ को इम्पैक्ट ज़रूर करेगा। In the next screen, we are going to look at some of the other important key features which have been mentioned in the NEP. One of the most important features is the continuation of the three language formula, जो कि पहले भी था और अभी भी इसको कंटिन्यू किया गया है। रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है और मदर टंग पे यानी कि जो आपकी मातृभाषा है उस पर बहुत ज़्यादा ফোকাস किया गया है। যেমন আমার মাতৃভাষা বাংলা, তাই আমাদের স্টেটে সবাই বাংলাতেই পড়াশোনা করবে এবং ক্লাস 5 অবধি বাংলা কিন্তু কম্পালসরি করে দেওয়া হয়েছে। সেরকমই সব রাজ্যে তাদের নিজেদের ভাষা মাতৃভাষাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে। And moving on, Higher Education Commission of India, that is HECI, will be formed, which will include or merge all the important bodies like UGC, AICTE, NCTE, जो भी अभी बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, इन सबको मर्ज करके एजुकेशन को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, जो कि सिर्फ एक ही बॉडी इसको कंडक्ट करेगी। And one of the most important features that I found in the NEP is the transformation of the assessment system. यानी कि अब तक दोस्तों जो आपकी परीक्षाएं होती हैं स्कूल लेवल पे, उसको टीचर असेस करते हैं, टीचर आपको मार्क्स देते हैं। पर अभी ये तीनों लेवल में होगा, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। यानी आप खुद को मार्क्स देंगे, आपके जो दोस्त संगी साथी हैं, जो आपके फ्रेंड्स स्कूल में, वो आपको मार्क्स देंगे और आपके टीचर्स भी आपको मार्क्स देंगे। I think the integration of self-assessment from that young age is very important as it becomes a very important step in life later on. Other points include the introduction of school complex or clusters, that is, few schools will be situated and working together. Then we have the entry of foreign universities in the Indian market, and the education will become multidisciplinary, यानी कि सारे types के जो education है ये वो सबको एक ही जगह में, एक ही इंस्टीट्यूशन में सारे टाइप के चीज़ें होंगी। कुछ ऐसे आईआईटी में सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं होगा। उसमें सारे हर टाइप के स्ट्रीम की पढ़ाई को इंक्लूड किया जाएगा, जो कि आपको स्कूल लेवल से ही देखने को मिलेगा, तो उसी का रिफ्लेक्शन कॉलेज लेवल पे भी होगा। एंड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस हैज बीन गिवन on technology, digital education, online education, as it is already evident as we are in 2020 in the COVID age, right? Next, I have listed some important full forms that have been mentioned in the NEP. One of the important of them is PARAK, that will be the System of Assessment, Performance Assessment Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development. You can just go through the list or take a screenshot, as I think the NEP is going to be very important for teaching related exams and current affairs and all the other upcoming exams. And lastly, I would like to tell you all that whether you're doing your schooling or your graduation or your B.Ed, please do not panic. आप स्कूल में हो, आप इस बार आपने 10th दिया है, आप 10th देने वाले हो, आप 11 में हो, आप 12th देने वाले हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कोई और कोर्स कर रहे हो, या आप B.Ed कर रहे हो, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं तो सेकंड ईयर में हूँ, फिर क्या होगा, फिर इस बार से क्या होगा। This change is such a huge change that it will take time. ऐसी गवर्नमेंट प्लानिंग चेंज में इम्प्लाई होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, एक दो साल तो लग ही जाते हैं, और इन सारी चीज़ों को आपको उनके प्रॉपर नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा कि उस चेंज में, उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या क्या चेंजेस होती हैं। सो यू ऑल्सो हैव टू बी एक्सट्रीमली अवेयर। आप अवेयर रहिए, आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए एंड पैनिक मत कीजिए। जो भी चेंज होगा वो सबके लिए होगा, एंड ये जो चेंज होगा ये आने वाली जो जनरेशन होगी उनके लिए बहुत ही अच्छी होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, and I will see you in the next video. Till then, let's embrace change, and if you like this video and found anything at all relevant, then please share it and subscribe the channel if you're seeing the video for the first time. Thank you so much.